Hello friends, today we are going to learn our third lecture in chapter number 2 for the foundation, right? In our first two lecture, especially in our first lecture, we have discussed about Newton's first law and second law. The Newton's first law is about inertia, right? A property of a body not to change its state is called as inertia. Higher the mass, higher the inertia. That you have already seen. In our Newton's second law, we have seen that the rate of change of momentum of an object is equal to the external force. Is equal to the net external force that is acting on the object, and the change is in the direction of the net force. That is the Newton's second law. In our second lecture, we have discussed about application that is related with the first two lecture, right? In our third lecture, we are going to discuss Newton's third law and then after momentum conservation law. But before going to discuss that theory, first of all, we will solve few MCQs that is related with our first two lecture. Okay, see, this is the question. Very basic question, but they are left. So right now we will discuss that. Which of the following has the largest inertia? Who has the largest inertia? Higher the mass, higher the inertia. That is the funda, right? So they are saying that which of the following has the largest inertia? So you have to focus which object has higher mass, a pin, an ink pot, your physics book, or your body? Definitely your body. Hello, higher the mass, higher the inertia. That's why your answer is D, your body. Look at this. When a bus starts suddenly, the passengers standing on it lean backward in the bus. This is an example of which law? See, क्या होता है जब आप किसी भी बस के अंदर ट्रैवल करते हो, तो सपोज कि आप खड़े हो, आपको सीट नहीं मिली, तो आप ऐसे खड़े रहते हैं. जैसे ही वो ड्राइवर बस स्टार्ट करता है, तो क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि आप पीछे की ओर है, आपको किसी ने धक्का दिया. क्यों? ऐसा क्यों होता है? बेसिकली at initial position, bus is steady. Means the floor of the bus is steady and you are standing on the floor of the bus. Means your lower portion, your body's lower portion is rest. Suddenly what happened? When driver accelerate the bus, at that time, your lower portion comes to the acceleration. आपके बॉडी का नीचे का हिस्सा क्या करता है? बस के साथ एक्सेलरेट होने की ट्राई करता है, लेकिन बॉडी का जो अपर हाफ है वो क्या करता है? वो तो पहले स्टेडी था, अभी भी स्टेडी रहने की ट्राई करेगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक स्टेडी ऑब्जेक्ट स्टेडी रहता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होने वाला ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी जारी रखता है. तो यही कंसेप्ट यूज होता है इसके अंदर कि जैसे ही बस का फ्लोर वेलोसिटी, बस के फ्लोर के पास वेलोसिटी आई, मतलब आपका लोअर पार्ट उस वेलोसिटी से ट्रैवल करने की ट्राई करता है, लेकिन अपर हाफ स्टेडी था, पहले स्टेडी था, अभी भी स्टेडी रहने की ट्राई करता है. मतलब कि नीचे से पैर आगे की ओर जाने वाले हैं और आपका अपर हाफ तो ये बोल रहे हैं मैं तो स्टेडी ही रहूंगा, तो आपको ये लगेगा कि आपको पीछे किसी ने धक्का दिया. So this is the phenomenon that is related with Newton's first law. That's why our answer is Newton's first law. Okay. See, a force of a given magnitude acts on a body. The acceleration of the body depends on what? आपको ये पूछा गया है कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? A force of a given magnitude acts on a body. The acceleration of the body depends on what? Suppose आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ज्यादा मास वाला है, एक कम मास वाला है. आप ज्यादा मास वाले को 10 न्यूटन का फोर्स देते हैं, कम मास वाले को भी 10 न्यूटन का फोर्स देते हैं.
तो एक्सेलरेशन किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा? डेफिनेटली कम मास वाले में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज सेम, so acceleration depends on what? Acceleration is equal to force upon mass. So force is same, means acceleration inversely depends on the mass. So that's why your answer is mass of the body. देखो वॉल्यूम, डेंसिटी, शेप, ये किसी भी चीज पे उसका कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप देखो आपके पास बहुत से बड़े साइज का कॉटन का ऐसा पूरा गुच्छा है, और साथ ही में आपके पास आयरन का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, फिर भी आप देखो ना तो सेम फोर्स लगाओ तो कॉटन का गुच्छा ज्यादा देर तक दूर चला जाएगा, लेकिन वो आयरन का जो ऑब्जेक्ट है वो इतना डिस्प्लेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मास पे ज्यादा डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन किस में ज्यादा एक्सेलरेशन किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा? तो वो डिपेंड करता है मास पे, ना कि साइज पे, ना कि शेप पे, ना कि डेंसिटी पे। ठीक है, see, the momentum of a body of a given mass is proportional to its what? Momentum. Momentum P is equal to mass into velocity. Momentum depends on speed. Hello, V, velocity, speed. वॉल्यूम पे, शेप पे और कलर पे वो डिपेंड नहीं करता है। आपका मोमेंटम या इधर इट डिपेंड्स ऑन मास और इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। So here speed is your answer, because from formula said that P is equal to mv. A 10 Newton force is applied on a body, produces an acceleration of 1 meter per second square. The mass of the body is what? See, force is given, acceleration is given, so ultimately mass is given. Mass is equal to what? Force upon acceleration, so 10 upon 1, so 10 kilogram is your answer. See, this is asked in NEET 1996. Just formula based question is there. Okay. An unbalanced force acts on a body, the body what? Unbalanced force acts on a body. Suppose you have an object, right? If 10 Newton force is acting in rightward side and 10 Newton in left direction, so ultimately there are two forces, but they are called balanced force. So ultimately your object will be at rest. Why? Because same amount of force is acting on the object and in different direction and in opposite direction, means your object is at rest. Suppose there are unbalanced forces. If there are unbalanced forces, means you will get some net external force. If you will get some next external force, then force is equal to what? Mass into acceleration. Acceleration means what? Force upon mass. चलो कुछ भी, शायद 5 न्यूटन आंसर आया, 10 न्यूटन आंसर आया, 15 न्यूटन आंसर आया, कुछ भी नेट एक्सेलरेशन का, नेट फोर्स का कुछ भी आंसर आया, तो वो कुछ डिजिट होगा, कोई भी नंबर होगा। नीचे मास है, मास भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका कुछ तो मास होगा ना, तो वो मास मतलब ऊपर भी डिजिट है, नीचे भी डिजिट है, डिजिट डिवाइड बाय डिजिट करोगे आप तो आंसर भी कुछ डिजिट आएगा, मतलब कोई फिक्स्ड आंसर आएगा आपका। तो वो क्या डिनोट करता है? आपका एक्सेलरेशन इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। अगर आपके ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है मींस क्या? मींस आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। हेलो, रेस्ट कब होगा? आपका बॉडी रेस्ट कब होगा? अगर वो बैलेंस्ड फोर्स होता तो रेस्ट होता। आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कब करेगा? अगर वो बैलेंस्ड फोर्स होता। या तो आप ये बोल सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता, तो आप ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ,
जब तक बाहर से कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक आपका ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो स्टेडी रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी जारी रखेगा। ये सब आप तब बोल सकते हैं जब आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, बचे थे ये दोनों। सर्कल में ही घूमे ऐसा जरूरी नहीं है ना, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ऑलवेज सर्कल में ही घूमेगा। मस्ट मूव अलोंग अ सर्कल, दैट इज रॉन्ग। इट कैन बी मूव ऑन अ सर्कल बट मस्ट मूव अलोंग अ सर्कल, दैट इज रॉन्ग। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज मस्ट बी एक्सेलरेटेड। फाइन, सिंपल सिंपल है लेकिन उसका कंसेप्ट बहुत, अगर आपने थियरी से अच्छे से हुई है तो ये सारे प्रॉब्लम आप खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट विल, कुछ भी फोर्स लग ही नहीं रहा है, देन आइदर रिमेन एट रेस्ट और मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हेलो, अगर कुछ फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्या होगा, या तो वो स्टेडी होगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। सो आंसर सी इज राइट। उसका डी शेप मतलब वो उसका शेप बदल जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। शेप तब बदल सकता है जब उस पर कुछ नेट फोर्स लगे। मूव विथ इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड तब इंक्रीज होगी जब एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन तब आएगा जब फोर्स आएगा। फोर्स तो है नहीं तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं तो स्पीड बढ़ेगी नहीं। ब्रेक मतलब कि स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड तब डिक्रीज होगी जब फोर्स आएगा, फोर्स तो है नहीं तो स्पीड कैसे डिक्रीज हो सकती है। सो आंसर सी इज राइट। By applying a force of 1 Newton, one can hold a body whose mass is approximately equal to what? By applying a force of 1 Newton, one can hold a body whose mass is approximately equal to what? क्या करता है, एक इंसान इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ पे होल्ड करता है। अगर ये होल्ड नहीं करता तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होना था, जितना ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता उतना ये बॉडी का एक्सेलरेशन होता। मतलब कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन डेटा में नहीं दिया है लेकिन आप मालूम कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा उतना ही ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा। मास नहीं दिया है, फोर्स दिया है। सो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन इज गिवन, फोर्स इज गिवन, यू वांट टू फाइंड आउट मास, so force is equal to mass into acceleration, but in place of acceleration you have to consider g as the acceleration of the body. Force is what, 1 Newton, and g is what, g is 10 meter per second square. So ultimately 0.1 Newton means kilogram meter per second square upon देखो यहाँ पे 1 न्यूटन 1/10 मैंने 0.1 तो कर दिया है तो ये 10 अगेन नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए। सो आपका आंसर आया 0.1 किलोग्राम। ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ये लोगों ने सारे ऑप्शन किलोग्राम में दिए लेकिन 1 किलोग्राम, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। 0.1 कहीं पे भी है नहीं तो आपको कन्वर्ट करना होगा। 0.1 किलोग्राम मीन्स क्या, 100 ग्राम। सो आंसर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये छोटा कन्वर्जन आपको मालूम रहना चाहिए। देखो लेक्चर अटेम्प्ट करते वक्त आपके पास नोट पेन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक बार थियरी पढ़ा दूंगा उसके बाद सारे क्वेश्चन फटाफट करवाऊंगा, क्योंकि यही करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तब आपके पास कम टाइम में आंसर तक पहुंचने की एबिलिटी ज्यादा डेवलप होनी चाहिए। तो वो तब होगा जब आप थियरी अच्छे से पढ़ोगे, और थियरी अच्छे से पढ़ने के बाद सारे प्रॉब्लम वन बाय वन फटाफट करते जाएंगे। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ये तो हो गया। ये देखो आंसर डी देख लिया सर हमने, ठीक है कोई बात नहीं। कैसे डी वो बताओ मेरे को। स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, दिस इज बिकॉज व्हाट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअस बढ़ती ही जाएगी। क्यों, बिकॉज
अर्थ अट्रैक्ट्स इट. अर्थ अट्रैक्ट मीन्स व्हाट? क्योंकि उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा. ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि पर सेकेंड आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का बढ़ावा हो रहा है. अगर मैं यहां से फ्री फॉल करवाता हूं किसी ऑब्जेक्ट को तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड. लेकिन 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड देयर इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. मीन्स यू कैन से दैट why your falling body increases, why the speed of a falling body increases continuously? Because the earth attracts it. No force acts on it. Who said no force? There is the force of gravity. It is very light. It is not necessary. If your object is heavy, even though its speed will be increases. The air exerts a frictional force on it. अगर frictional force है तब तो speed कम होगी, ज्यादा थोड़ी ना होगी. So answer is D. ठीक है. वन टेबल गिवन. यहां पे आपको डेटा इंग्लिश में देना चाहिए कि whose momentum will be higher among these four body, whose momentum will be higher. Momentum means what? Mass into velocity. Mass into velocity means you have to multiply mass and velocity for each object. So for the first body momentum is 10 Newton second. For the second body it is 18 Newton into second. For the third body it is 24 Newton into second. And for the fourth body it is 28 Newton into second. So ultimately 28 is the higher answer. So your answer is body D. D has highest momentum. Right? So that's how you can solve this problem. The velocity of a particle of mass 150 gram changes from 8 meter per second to 12 meter per second in 2 seconds. Assuming that a constant force acts on it, find the magnitude of the force. Here you want to find out the magnitude of the force and your answer is 0.3 Newton, right? But how? ये सारी चीजें यहाँ नहीं देनी चाहिए थी मेरे को, लेकिन ठीक है गलती से यहाँ पे आ गया है. लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि आंसर तक कैसे पहुंचे. Which formula you should apply and how can you come to know which formula is suitable for this kind of situation? First of all, you have to collect the data. What is given? See, the velocity of a particle of mass is given. Mass is 0.15 kilogram. Changes from 8 meter per second to 12 meter per second. Means final velocity is given 12 meter per second. Initial velocity is also given. V1 is 8 meter per second. Constant force is there. Force is constant. F is constant. If F is constant means acceleration is constant, and if acceleration is constant means you can use any of the formula from constant accelerated equation. Find the magnitude of the force. Ultimately you want to find out the magnitude of the force. F is what? See, according to Newton's second law, the rate of change of momentum is equal to the external force acting on the object. So you can say that F is equal to delta P upon delta T. According to Newton's second law, delta P means what? Mass into velocity of final. Final mass into velocity means final momentum minus initial momentum, mv2 minus mv1 upon delta T. M can be common out, so ultimately it is v2 minus v1 upon t. Delta t means t minus 0 because starting time is 0. F मास है 0.15 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी है 12, इनिशियल वेलोसिटी है 8, और टाइम कितना लगाया? टाइम के बारे में कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है? इन 2 seconds. So ultimately t is given. T is 2 seconds.
So here it is 2 second. So 0.15, 12 minus 8 is 4 divided by 2, 2 2s are 4, 0.15 into 2, it is 0.3 Newton. Force is 0.3 Newton. See, आप ये वाले फॉर्मूला से भी आपका क्वेश्चन कर सकते हैं. V is equal to V0 plus AT. V is given, V0 is given, T is given. So you can find acceleration. Once you find acceleration, you can take F is equal to ma. So ultimately you have mass, you have acceleration, so you can get the answer of force. So this is the second method. This is the first method. Whatever method will be suitable for you, you can use that, right? So write down all these methods in CTP 164. Here they are finding acceleration first, and then after doing force is equal to mass into acceleration. See, CTP 165. Question, your answer आएगा 8 meter per second and 64 meter, right? મારા બેટા ઈ જ નજરે રાખશે કે અહીંયા હું આપેલું છે, ગણવું પડશે. A force of 4 Newton acts on a body of mass 2 kg for 4 seconds, assuming the body be initially at rest. Find its velocity when the force stops acting, the distance covered in 10 seconds after the force starts acting. See, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब तक के जितने सारे क्वेश्चन हमने किए उसमें से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिचुएशन समझने के लिए आपको बहुत कुछ लगाना पड़ेगा. A force of 4 Newton acts on a body of mass 2 kg 4 सेकेंड. जो भी सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार. ये वाली सिचुएशन है, यहां पे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं. कितनी देर तक लगा रहे? यहां से स्टार्ट करके 4 सेकंड जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक आप उस पे फोर्स लगा रहे हैं. मतलब कि 4 सेकंड के बाद सपोज कि आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा, तो अभी यहां पे फोर्स नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर था. अब फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका ऑब्जेक्ट स्टेडी हो जाएगा. अगर कोई बंदा यहां पे खड़ा है, मैं उसको थोड़ी देर धक्का देके फिर छोड़ दूं, तो मैंने कुछ देर के बाद फोर्स लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो बंदा आगे की ओर जाएगा. मतलब क्या कि फोर्स बंद होने से आप ये नहीं कह सकते कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया. फोर्स बंद होने से आप ये भी हो सकता है, आप ये भी समझ सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के पास अब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई. फोर्स नहीं लग रहा है मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा मतलब कि जितनी भी वेलोसिटी फोर्स लगने के बाद होगी, फोर्स लगना बंद होने के बाद होगी, उतनी ही वेलोसिटी से वो आगे की ओर चला जाएगा. मतलब कि यहां से यहां तक फोर्स कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट था. फोर्स कांस्टेंट था मतलब कि क्या, आप ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन की जितनी भी फॉर्मूला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, उसमें से आप किसी भी इक्वेशन की जरूरत जब आपको लगेगी तब आप यहां से यहां तक के पोर्शन के बीच लगा सकते. अभी यहां पे फोर्स जीरो है, फोर्स इज जीरो. फोर्स जीरो है मतलब क्या, आप ये समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो है उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा कांस्टेंट. कब तक कांस्टेंट है, आगे जितनी भी देर जाएगा तब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाएगा. आपको डेटा में क्या पूछा गया है, इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग. फोर्स लगा है 4 न्यूटन का, आपके ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम, और वह लगा कितनी देर तक, 4 सेकेंड तक लगा है फोर्स. ठीक है. फोर्स इज गिवन, मास इज गिवन, सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स अपॉन मास. सो 4/2,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। आपको यहां पे स्पीड फाइंड आउट करनी है कि यहां पे स्पीड कौन सी होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये लगा सकते हैं ना, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। फाइनल स्पीड कौन सी है वो मालूम करना है। इनिशियल स्पीड कौन सी थी वो आपको नहीं मालूम है। इनिशियली क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मींस v0 इज 0, एक्सेलरेशन इज 2, और कितनी देर तक, 4 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हुआ। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। सो हियर योर फर्स्ट आंसर, they are saying that its velocity when the force stops acting, कितनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी 8 मीटर पर सेकेंड। सो यहां पे स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, और बाकी कितनी भी देर तक वो ऑब्जेक्ट चलेगी उसका स्पीड कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट एक्टिंग। फोर्स लगना चालू हो गया है, यहां से 10 सेकेंड जाने दो, 10 सेकेंड जाने दो, तब तक आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो फोर्स पहली 4 सेकेंड तक लग रहा है, उसके बाद की 4 सेकेंड के बाद फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कि पहली 4 सेकेंड के दौरान आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, और 4 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो आप ये बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन 4 to 10 सेकेंड। पहली 4 सेकेंड में कितना अंतर कवर हुआ, और उसके बाद 4 से 10 सेकेंड के बीच कितना अंतर कवर हुआ, वो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लो। क्योंकि यहां पे क्या होगा, ये डिस्टेंस के अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से यहां क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाओ तो डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। v0 तो 0 है, 1/2, एक्सेलरेशन 2 है, टी स्क्वायर मतलब टी क्या होगा, फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस वेलोसिटी कितनी आई 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 4 से 10 सेकेंड मतलब कि 6 सेकेंड। 2 will be cancel out, so 4 square 16 plus 8 6 are 48. So ultimately this is 64 meter. Distance covered in first 10 second is 64 meter. See, ये सॉल्यूशन आप अपने मॉड्यूल में किधर भी लिख लो, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन दिया है वो भी समझने के लिए आसान है, लेकिन मैंने क्लासरूम में ये सॉल्यूशन करवाया है तो ये ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। आप वीडियो पॉज करके ये वाला सॉल्यूशन आपके मॉड्यूल में किधर भी लिख लो, ठीक है। CTP 165, ओके। A force produces an acceleration of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ डिस्क। आपके पास कोई एक डिस्क है, उसका मास मालूम नहीं, सपोज कि मास m है, उसके ऊपर कितने का फोर्स लगा मालूम नहीं, सपोज कि F फोर्स लगा, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आया है 1.5। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू 1.5। अभी क्या हुआ, 3 such disks are tied together, the same force is applied on the combination. This time there are 3
सेम काइंड ऑफ डिस्क, अगर सेम काइंड ऑफ 3 डिस्क है तो उसका मास क्या होगा 3m, और फोर्स भी उतना ही लग रहा है पहले जितना, मतलब कि F ही लग रहा है, तब इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास. सो F by m is what? F by m is 1.5. So it is 1.5 divided by 2. It is 1/2. It is 0.5 meter per second square. तो एक डिस्क से एक्सेलरेशन इतना था, तो 3 डिस्क लगाने के बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये आप ऐसे सोल्व आउट कर सकते हैं. (167) A force of 4 Newton acts on an object of mass 2 kg in x direction and another force of 3 Newton acts on it in y direction. Means you have one object. 4 Newton force acts in x direction. Means 4 Newton. पर वो क्या रहेगा, I कैरेट रहेगा ना x डायरेक्शन में. 3 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में है, y प्लस y डायरेक्शन में, मतलब कि वो 3 न्यूटन j कैरेट होगा. आपको पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट. आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा. एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन मास. फोर्स क्या है, फोर्स आपका ये है 4i कैरेट प्लस 3j कैरेट, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालना बाकी है. और मास कितना है 2 किलोग्राम. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में i कैरेट वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैरेट वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ये कंसेप्ट वेक्टर के अंदर आता है, और वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. जिन लोगों ने 9th में ही फाउंडेशन स्टार्ट किया है उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, आई कैरेट वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैरेट वाले के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. सो इट इज 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, इट इज अंडर रूट 25 बाय 2. अंडर रूट 25 का आंसर होगा 5 बाय 2. सो आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. हेलो, इसमें भी कोई चीज हार्ड नहीं है, जस्ट वेक्टर कंसेप्ट यूज किया है. आपको मैं फोर्स दे देता और मास दे देता तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर ही सकते थे ना, लेकिन इस बार मैंने फोर्स ऐसे ही नहीं दे दिया, कुछ वेक्टर के फॉर्म में मैंने आपको फोर्स दिया, तो आपको तो बस उसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ठीक है. If the force on the rocket moving with velocity 500 meter per second is 400 Newton, then the rate of combustion of the fuel will be what? See, ये समझने के लिए हार्ड है. Rate of combustion of the fuel will be what? Means आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको फाइंड आउट करना क्या है. हेलो, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल मीन्स व्हाट. अगर मैं पूछता कि एक्सेलरेशन कितना है, अगर मैं पूछता फोर्स क्या है, अगर मैं पूछता मास क्या है, अगर मैं पूछता फाइनल वेलोसिटी कौन सी, अगर मैं पूछता इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, तो आपके दिमाग में समझ सकता है, आपका दिमाग समझ सकता है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है. लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल विल बी व्हाट. अगर कुछ समझ नहीं आता है तो एक बार आप ऑप्शन के यूनिट देखो, किलोग्राम पर सेकेंड. किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का. सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का. Ultimately you want to find out m upon t is what. The rate of combustion of the fuel means what, m upon t. हेलो, आपके पास कोई रॉकेट है, सपोज कि ये वाला रॉकेट है, सपोज ऐसे 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 धुआं निकल रहा है पीछे से. ठीक है. पूछा क्या गया है, उसकी वेलो इनिशियली वो स्टेडी होगा ना, 0 मीटर पर सेकेंड होगा इसका स्पीड. एक बार इंजन स्टार्ट हुआ उसके बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी आती है, 500 मीटर पर सेकेंड. इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन का.
एम अपॉन टी फाइंड आउट करना है। सो अल्टीमेटली आप न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एम बाई टी फाइंड आउट करना है, तो एम बाई टी को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा, फोर्स अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो एम बाई टी का आंसर क्या आएगा, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन का। वेलोसिटी कितनी लग रही है, तो फाइनल वेलोसिटी है 500, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, सो इट इज 4/5 मीन्स 0.8 किलोग्राम पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, 0.8 किलोग्राम पर सेकेंड। आंसर ए इज राइट। हेलो, ये वाला सॉल्यूशन भी आप अपने मॉड्यूल में किधर भी लिख लो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन दिमाग में आएगी तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी एप्लीकेशन हमारे फर्स्ट 2 लेक्चर में बाकी थी वो भी यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशन खत्म हो गई है। अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। क्या करना है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। आप किसी भी बच्चे को पूछेंगे ना कि न्यूटन के 3 लॉ है, तेरे को कौन सा लॉ अच्छा लग रहा है, तो वो यही बोलेगा कि मेरे को न्यूटन का थर्ड लॉ ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो समझने के लिए भी एकदम आसान है और आप इजीली उसको याद भी रख सकते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटमेंट इज लाइक every action has equal, every action always has, see I am using the word always, every action always has equal and opposite reaction. This is the statement of Newton's third law. न्यूटन ने यह बताया कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है। एक्शन का रिएक्शन होना वो समझ में आता है, लेकिन जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। एंड एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सारी चीजें न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ के अंदर बताया है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि अगर कोई भी बच्चा मेरे पास रोते रोते कंप्लेन करके आया कि सर मुझे इसने चाटा मारा। हेलो, अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है कि सर ये बाजू वाले बच्चे ने मेरे को जोर से चाटा लगाया, तो क्या होगा, मैं दूसरे बच्चे को मारूंगा? नहीं। एज अ साइंस टीचर मैं यही बोलूंगा कि अगर उसने तेरे को चाटा मारा है तो तूने भी मार ही दिया होगा। तो वो बोलेगा क्या, नहीं सर मैंने उसको चमाट नहीं लगाई, उसने ही मेरे को चमाट लगाई है। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ है क्या, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि उस इंसान ने उसके गाल पर चाटा मारा तो उसके गाल ने वो दूसरे पर्सन के हाथ के अंदर ऐसे 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 सामने थोड़ा तो फोर्स लगाया है, थोड़ा नहीं, जितनी जोर से उसने चाटा लगाया उतनी जोर से उसने सामने की ओर फोर्स उसके गाल ने लगाया ही होगा। हेलो, उसका जो गाल है, अगर उसका गाल ये वाला चाटा सहन नहीं कर पाता है, लेकिन उसके गाल के द्वारा जो भी फोर्स लगा वो उसका पाम, उसकी हथेली है, वो सहन कर लेती है। तो होता क्या है, उस बंदे को कुछ नहीं लगता, लेकिन उस पर्सन जिसने चमाट खाई उसको ज्यादा चोट आई। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक्शन वाला फोर्स ज्यादा था, रिएक्शन वाला फोर्स कम था। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक्शन वाला जितना फोर्स था उतना ही फोर्स रिएक्शन वाला था, लेकिन वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि कौन ये फोर्स सहन कर सकता है, कौन ये फोर्स सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपकी अगर ये कंप्लेन आती है कि इसने मेरे को चाटा मारा, तो आप ऐसी कंप्लेन लेके मेरे पास मत आना कभी भी, क्योंकि अगर किसी ने चाटा मारा तो आपने भी उसको मार ही दिया होगा।
आप ये भी नहीं बोल सकते कि उसने मेरे को पहले चाटा मारा, मेरा रिएक्शन बाद में गया, ये भी नहीं हो सकता। जब उसका हाथ उसके गाल पर लगता है तो आप देखो कि गाल पहले हाथ को लगता है या हाथ पहले गाल को लगता है। हेलो, दोनों एक साथ ही लगते हैं ना। मतलब क्या? मतलब कि एक्शन एंड रिएक्शन सेम टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। आप किसी भी को एक्शन बोल सकते हैं, आप किसी भी को रिएक्शन बोल सकते हैं। उसने चमाट मारा तो चमाट को आप एक्सेलरेशन, चमाट को आप एक्शन बोलो, और उसके गाल के द्वारा जो भी थ्रस्ट उसके हाथ पे लगा उसको आप रिएक्शन बोलो। ये नहीं हो सकता। जो एक्शन है वही रिएक्शन है। आप अपने मुताबिक डिसाइड करो कि आपको किसको एक्शन लेना है, किसको रिएक्शन लेना है। अब तक मैंने जितनी भी बातें की उसमें से समझ में क्या आया कि एक्शन एंड रिएक्शन सेम टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। आप किसी भी को एक्शन बोल सकते हैं, किसी भी को रिएक्शन बोल सकते हैं। एक्शन का जितना फोर्स है उतना ही फोर्स रिएक्शन का है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। एक और चीज, एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकते। मेरे हाथ के द्वारा उसके गाल के ऊपर कुछ चाटा लगा तो हाथ के द्वारा चाटा किधर लगा? उसके गाल पे। तो गाल पे जो लगा वो एक्शन है, और गाल की वजह से जो मेरे हाथ पे लगा वो रिएक्शन है। सो एक्शन गाल पे है, रिएक्शन हाथ पे है। तो एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे दोनों एक साथ नहीं लग सकते। एक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट पे लगेगा, रिएक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट पे आएगा। लेकिन हाँ, आप किसी भी को एक्शन बोल सकते हैं, किसी भी को रिएक्शन बोल सकते हैं। जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो यही सारी चीजें न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर बोली गई है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. There exists no isolated force in nature. Forces are produced only due to interaction between the two bodies. Forces are produced only in pair. न्यूटन ने तो ये भी बता दिया कि कभी भी कोई सिंगल फोर्स प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। फोर्स कैन ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन होना ही होना है। एंड the forces in pair are equal in magnitude and opposite in direction. Means एक को आप action बोलो, एक को आप reaction बोलो. So ultimately every action there is an always equal and opposite reaction. In the interaction between two bodies, any one force is called reaction. आप किसी को भी action बोल सकते हैं, किसी को भी reaction बोल सकते हैं. It is not correct to suppose that the first action takes place and then as a result reaction occurs. This is wrong. This is senseless. Action and reaction same time पे होता है। पहले action हुआ बाद में reaction आया, ये सब गलत है। Such cause effect relationship is not implied in this third law. The force on A by B and the force on B by A both get simultaneously applied. हेलो, यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट है ये A, ये वाला ऑब्जेक्ट है आपके पास सपोज के B, ये दोनों आपस में टकराते हैं तो होता क्या है? A वाला B पे फोर्स लगाता है, B वाला A पे फोर्स लगाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी, हेलो इसको क्या बोल सकते हैं आप? पहले जो आता है उस पे फोर्स लगता है, बाद में जो आता है उस पे वो फोर्स लगाता है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी, ये जो फोर्स है वही फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय ए। बट उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आप बात करते हो तो मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप वेक्टर के बारे में बात करते हो तो आपको यह लिखना होगा कि माइनस एफ बी। अगर डायरेक्शन के साथ डिनोट करते हो तो ए
ए पर बी जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स बी पर ए लगाता है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। तो आप यहां से क्या समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं, थोड़ा मैं बड़े अक्षर में लिख लूं ताकि आपको दिखाई दे, फोर्स ए ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय ए। सो ये सिचुएशन होनी है, यही चीज आपको यहां पे बताई गई है आगे। एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यहां पे वेक्टर आना चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हो तो सेम है। If we want to discuss the motion of only one body, then we have to take the force on that body only. The other force is irrelevant and it is not to be taken into account. अगर आप एक ही बॉडी पे कौन सा फोर्स लगा हो उसके बारे में बात कर रहे हैं, सपोज कि ए के ऊपर बी फोर्स लगा रहा है, तो आपको लेना क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी, मतलब कि आपको एफ ए बी ही लेना है, आप एफ बी ए तब नहीं ले सकते। For the motion of the system as a whole, force systems are not responsible for the motion. अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा तो ही मोशन होगी, इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी मोशन नहीं हो सकती। ये सारी न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ के अंदर बताई। उसके बाद आता है उसके रिलेटेड कुछ जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एक्ट ऑन द सेम बॉडी, नहीं ये गलत है, कभी भी सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यस दैट इज ट्रू। एक्ट अलोंग द डिफरेंट लाइंस, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। हेलो, डिफरेंट लाइन नहीं, अपोजिट लाइन होता तो मैं समझ सकता था, यहाँ पे सेम डायरेक्शन तो है नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए, तो ये ट्रू हो सकता था। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बी। Swimming is possible on account of which law? Hello, you can swim according to which law? According to Newton's third law। लेकिन कैसे, देखो जब आप तैरते हैं तब आप अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पानी आप पे आगे की ओर फोर्स लगा रहा है, आप पानी को पीछे धकेल रहे हैं तो पानी आपको आगे की ओर मूव करेगा, तो इस वजह से आप तैर सकते हैं। तो एक्शन पीछे की ओर हुआ, रिएक्शन आगे की ओर हुआ। सो एक्शन रिएक्शन वाला जो कंसेप्ट आता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर आता है। सो स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन एन अकाउंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों ने वो महाभारत भी देखा होगा ना, जिसमें वो द्रौपदी जी का स्वयंवर आता है। अब तो राखी सावंत का और वैसे सारे शहनाज गिल का भी स्वयंवर होता है, लेकिन पहले के जमाने में क्या था, जो भी राजा था वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे हस्बैंड ढूंढ सके उसके लिए वो एक कंपटीशन रखता था जिसको स्वयंवर बोलते थे। कोई ऐसा कठिन टास्क देते थे, जो भी इंसान, जो भी लड़का वो कठिन टास्क पास कर लेता है उसको, जो राजा की बेटी है उसके साथ उसका ब्याह कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम है, द्रौपदी जी का भी स्वयंवर हुआ था, लेकिन उसका जो टास्क था वो भी शायद आपको मालूम होगा। टास्क क्या था, टास्क ये था कि पहले से कुछ वो धनुष रहता है, वो धनुष ऐसे गिरा हुआ होगा, मतलब किधर भी रखा हुआ होगा। पहले तो जो भी राजा महाराजा या तो कोई भी ऐसा कैपेबल पर्सन जो भी सभा में इनवाइट किए हैं, वो कंपटीशन के लिए जिन लोगों भी कंपटीशन में है उसमें से किसी को आना होगा, वो धनुष को उठाना होगा। सिर्फ धनुष को उठाना ही टास्क नहीं था, सीता जी के स्वयंवर में सिर्फ उठाना ही टास्क था। द्रौपदी जी में यही टास्क नहीं था, टास्क थोड़ा आगे था कि धनुष को उठाओ, फिर जो वो रस्सी होती है डोरी, वो डोरी को आप अपने हिसाब से टाइट करो, कितना टाइट करो, कैसे टाइट करो, वो सब आपके ऊपर। इतना टाइट करो कि उसमें से आप अपने तीर को निकाल सके, फिर ऐसे पुल करो और ऊपर की ओर एक मछली घूम रही होती है, आपको मछली को नहीं, मछली की आंख के अंदर तीर मारना होता है।
और ऐसे ऊपर करके नहीं, आपको नीचे की ओर देखना है। नीचे पानी रहता है, पानी में मछली का रिफ्लेक्शन आता है, और आप खड़े भी किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब कोई भी ऐसा फ्लोर अच्छा नहीं रहता जिस पे आप खड़े रह सकते हैं। आपको खड़ा भी किस में रहना है, वो तराजू रहता है ना, उसके अंदर। मतलब कि देखो, अगर किसी को द्रौपदी जी के साथ शादी करनी है तो उसको फिजिक्स के कितने कंसेप्ट आने चाहिए। देखो, पहले तो बैलेंस करना है, मतलब वेट का ध्यान रखना है, ग्रेविटी फोर्स ऐसा रहे कि आप स्टेबल रह सको। वो तराजू के अंदर एक पाव रहते हैं तो वो आपको पहले स्टेबल करने होंगे। फिर वो धनुष उठाओ, मतलब फोर्स लगेगा। फिर वो इस तरह से रस्सी बांधो, ऐसे रस्सी बांधो कि ताकि वो एकदम टाइट रहे, और इतनी ही टाइट रहे कि जब आप वो धनुष ऊपर से ऐसे छोड़ो, नीचे देख के ऐसे धनुष आप छोड़ो, तो वो मछली की आंख में ही जाना चाहिए। मतलब कि फिजिक्स के अंदर जिस बंदे ने पीएचडी कर रखा हो उसके लिए भी ये टेस्ट बहुत कठिनाई भरी है। और ये सारी टेस्ट पास करके अर्जुन ने द्रौपदी जी के साथ शादी की। तो आप समझ सकते हैं कि अर्जुन का फिजिक्स कितना पावरफुल होगा। लेकिन जब भी टीवी में महाभारत दिखाई देता है और ये वाला सीन आता है, तब ये फिजिक्स की बातें ही नहीं करते। तब तो क्या आ जाता है, तब तो कोई सॉन्ग रख देते हैं। कौन सा सॉन्ग रख देते हैं, ऐसे ऐसे वो बंदा ऐसे क्या, अर्जुन ऐसे चला जाता है, फिर वो धनुष को उठाता है, वो जैसे जैसे मोशन होती है उसके साथ साथ वो गाना उसके अकॉर्डिंग उसके लिरिक्स आते हैं। जैसे कि अवसर पर खे वीर को, अर्जुन जैसे ही वो धनुष की ओर आता है तो ये पूरा गाना आता है। अवसर पर खे वीर को, वीर पर खे बाण। धनुष जब उठा लेता है तो देखता है कि ये धनुष कैसा है, मेरे को डोरी कैसे रखनी है। अवसर पर खे वीर को, वीर पर खे बाण। आंख लक्ष्य पर पार्थ की, उसकी आंख किधर थी, लक्ष्य पे थी, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर। आंख लक्ष्य पर पार्थ की, करे मत्स्य संधान। मत्स्य संधान मतलब मछली की आंख के बीच वो तीर लगाता है। तो ये तो पूरा गाना बज जाता है। लेकिन आप ये समझो कि आपको फिजिक्स आता होगा तब आपको द्रौपदी जी जैसी कोई सुकन्या मिलने वाली है। वो तो उस जमाने में, इस जमाने में तो आपको मालूम नहीं कौन सी मिलने वाली है। ठीक है। सो स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन एन अकाउंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है ऑब्जेक्ट ए, एक है ऑब्जेक्ट बी। सपोज कि ए वाला ऑब्जेक्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज कि वो यू ए वेलोसिटी से जा रहा है। बी वाला ऑब्जेक्ट वो भी यू बी वेलोसिटी से जा रहा है। दोनों ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ए वाले की स्पीड सपोज की ज्यादा है, ए वाले का मैग्नीट्यूड बी वाले के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। मतलब कि पीछे वाले ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा वेलोसिटी है कंपेयर टू आगे वाले ऑब्जेक्ट से। तो ये धीरे धीरे जाएगा, ये फटाफट जाएगा, और एक ही लाइन में जा रहे हैं तो मतलब कि आगे जाकर टकराने वाला है। तो सपोज कि यहाँ पे आके दोनों टकरा रहे हैं, जब भी ऐसे कोलिजन होगा तब ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा, बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा, और जैसे ही कोलिजन खत्म हुआ उसके बाद क्या होता है, वापिस से दोनों चले जाते हैं। ए वाला भी अपने मुताबिक आगे की ओर चला जाएगा, बी वाला भी अपने मुताबिक आगे की ओर चला जाएगा, लेकिन इस बीच वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि ए के पास यू ए वेलोसिटी है, अभी ए के पास वी ए वेलोसिटी है, और बी के पास यू बी वेलोसिटी नहीं है, बी के पास वी बी वेलोसिटी है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। सपोज मास तो सेम ही रहेगा, जितना ए का मास है कोलिजन के बाद उतना ही ए का मास रहेगा, चेंज आता है वो सिर्फ वेलोसिटी में चेंज आता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आप यहां तक तो पहुंच सकते हैं ना कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। आप
एफ ए बी को क्या बोल सकते हैं? फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ से आप ये बोल सकते हैं ना कि मोमेंटम का जितना भी चेंज हुआ टाइम के साथ उसको आप फोर्स बोलते हैं। तो ए पे फोर्स लगा तो ए का मोमेंटम देखो, पहले ए का मोमेंटम क्या था? मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, ये था इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन सा था ए वाले का? मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। लेकिन जब आप फोर्स लेते हैं तब आपको क्या करना है? डेल्टा पी लेना है। डेल्टा पी मतलब क्या? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कौन सा है? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। और डेल्टा टी टाइम कितना लेना है? सपोज के टी टाइम के बाद कोलिजन हुआ। सो आपका फोर्स ए बी क्या होगा? आपका फोर्स ए बी क्या होगा? आपका फोर्स ए बी ये होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? एम वी बी, ये बोल सकते हैं ना, सॉरी, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। हेलो, फाइनल वेलोसिटी भी यही डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी भी यही डायरेक्शन में है। ये वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोल दो तो ये वाली डायरेक्शन को आपको नेगेटिव बोलना होगा। फाइनल स्पीड वी ए है, इनिशियल स्पीड यू ए है, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको डेल्टा पी मिलेगा। सो डेल्टा पी क्या आया? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टाइम इंटरवल टी। इतना ही क्या आना है? इतना ही एफ बी ए आना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो माइनस एफ बी ए मतलब क्या? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मतलब बी वाले का फाइनल मोमेंटम, एम बी वी बी माइनस एम ए यू, सॉरी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टाइम टी। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, पहले से बता रहा हूं। इनिशियली मोमेंटम ए वाले का कितना था? इनिशियली मोमेंटम ऑफ ए कितना था? तो एम ए यू ए। मोमेंटम ए वाले का, सॉरी, बी वाले का कितना था? इनिशियली मोमेंटम बी वाले का क्या था? एम बी यू बी। फाइनल मोमेंटम आप देखो, फाइनली क्या हुआ? मोमेंटम ए वाले का कितना हुआ? एम ए वी ए। और मोमेंटम बी वाले का क्या हुआ? एम बी वी बी। आप ए वाले का मोमेंटम चेंज देखो तो इसमें से आपको ये सब्सट्रैक्ट करना होगा। अब बी वाले का मोमेंटम में डिफरेंस कितना है वो देखो, एम बी वी बी में से आपको एम बी यू बी बात करना होगा। तो ये चीजें हुई। यहां से आप देखो एम ए को कॉमन निकाल सकते हैं तो बचा क्या? वी ए माइनस यू ए। यहां से आप माइनस तो है ही, एम बी को कॉमन निकाल सकते हैं तो बचा क्या? वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। टी तो कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। वी वी वाला एक साइड कर दो, यू यू वाला एक साइड कर दो, तो एम ए यू ए माइनस एम ए यू ए उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस एम ए यू ए हो जाएगा। तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, और ये वाला माइनस इधर की ओर आया तो क्या होगा? एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये आंसर आया हमारा। ये पूरे के पूरे को क्या बोल सकते हैं आप? एम यू ए प्लस एम बी यू बी मतलब कि ये, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम कोलिजन होने से पहले के दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंट,
इसको आप बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या बोलता है कि मोमेंटम कंजर्व होना है। मोमेंटम कंजर्व कब होना है? मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब बाहर से कोई फोर्स नहीं होगा, इंटरनल कुछ प्रोसेस हो रही है। ए वाला अपने हिसाब से जा रहा था, बी वाला अपने हिसाब से जा रहा था, दोनों आगे जाके टकरा गए, फिर वापस से दोनों चले गए। इस बीच बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है, ये सारी की सारी प्रोसेस इंटरनली हुई है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब इंटरनल प्रोसेस होने से पहले का मोमेंटम और इंटरनल प्रोसेस होने के बाद का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि स्टार्टिंग में जो मोमेंटम है वही मोमेंटम आपको बाद में मिलेगा, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व होता है। ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ है, वैसे ही एक मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है। तो ये क्या बोलता है कि इंटरनल प्रोसेस से पहले का मोमेंटम और इंटरनल प्रोसेस से बाद का मोमेंटम सेम रहना है। कब? जब बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब। इंटरनल प्रोसेस क्या है इसमें? इंटरनल प्रोसेस क्या है इसमें? इंटरनल प्रोसेस है कोलिजन। कल जाके कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बॉम्ब ऑटोमेटिक ब्लास्ट होता है ना, मतलब आप एक ठीक है बाहर से कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है उसके अंदर, वो इंटरनली ब्लास्ट हो रहा है। तो क्या होगा? तो आप ये बोल सकते हैं ना कि इसमें इंटरनल प्रोसेस क्या है? बॉम्ब का ब्लास्ट होना। तो बॉम्ब जब ब्लास्ट नहीं हुआ था उससे पहले इसका मोमेंटम और बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। दो कार एक दूसरे के साथ टकरा रही है, तो कार जब टकराई नहीं थी तब उसका मोमेंटम और कार जब टकराई उसके बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। और मोमेंटम मतलब क्या? मास इनटू वेलोसिटी। सो यही सारी चीजें आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बताई गई है। ये पूरा चीज जो लिखा हुआ है ना वो मैंने आपको बताया वही है कि पहले दो ऑब्जेक्ट ऐसे यूए और यूबी स्पीड से जा रहा है, फिर क्या हुआ? फिर दोनों एक दूसरे के साथ टकराए तब क्या हुआ? ए वाले पर बी ने फोर्स लगाया, बी वाले पर ए ने फोर्स लगाया। अब क्या हुआ? फिर टकराने के बाद वो दोनों स्पीड चेंज हो गई, वी और वी बी हो गए। तो यहां से उन लोगों ने पूरा लॉ डिराइव किया है कि एफ ए बी कितना लगेगा। तो ए के ऊपर फोर्स लग रहा है मतलब ए के मोमेंटम का चेंज लेना है, बी के ऊपर फोर्स लग रहा है मतलब कि बी के मोमेंटम का चेंज लेना है। और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक ये दोनों तो सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। सो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए होना चाहिए। तो यहां से करके करके यहां तक उन लोगों ने डिराइव किया और इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ एप्लीकेशंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अभी ही हमने डिफाइन किया। आप डेरिवेशन कैसे दे सकते हैं? अगर आपके पास एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है, बी ए है, तब ही आप ये डेरिवेशन तक पहुंच सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन डिपेंड किस पे है? न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। The principle of conservation of linear momentum cannot remain constant. अरे वो तो constant रहता है, cannot be changed, can be changed only if internal forces acts, can be changed only if external forces act. Yes, momentum, linear momentum चेंज हो सकता है अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो, अगर इंटरनल फोर्स लग रहा है तब वो चेंज नहीं हो सकता। कैन नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, अरे वो तो कांस्टेंट रहता है। कैन नॉट बी चेंज, वो बदल सकता है अगर बाहर फोर्स लगा तो ये सारी चीजें गलत है, यही एक राइट है कि वो चेंज हो सकता है। कब? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब, इंटरनल फोर्स लगेगा तब वो चेंज नहीं होगा। सो आंसर
D is right answer. Conservation of linear momentum is equivalent to Newton's third law. हेलो, न्यूटन के थर्ड लॉ से ही आप ये डिराइव कर सकते हैं ना. A bullet of mass 20 gram is fired by a gun of mass 20 kilogram. If the muzzle speed of the bullet is 100 meter per second, what is the recoil speed of the gun? होता क्या है, आपके पास गन है, गन के अंदर बुलेट है, जैसे ही आप वो ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट आगे की ओर जाती है और एक थ्रस्ट आपको पीछे की ओर लग रहा है, मतलब कि आपकी बंदूक पीछे आती है. अगर ये चीज नहीं भी मालूम है ना, तब भी मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा कि बंदूक पीछे की ओर आएगी. कैसे वो मैं दिखाता हूं, आप पहले सिचुएशन समझो. आपके पास एक गन है, सपोज कि ये गन है. कौन सी गन रखेंगे हम? M416. सही है, सही है. मारा बेटा पबजी मत हाथ नहीं काटे एम. सपोज यहाँ पे कुछ स्प्रिंग होगी, बुलेट यहाँ पे होगी स्टार्टिंग. इनिशियली योर बुलेट इज हियर. ठीक है, जैसे ही ट्रिगर प्रेस होगा आपके बुलेट में, आपके गन में से बुलेट ऐसे बाहर निकलेगी. ठीक है, इनिशियली मास ऑफ बुलेट इज गिवन. बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम, मतलब 0.02 किलोग्राम. इनिशियली बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियली बुलेट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. गन का मास कितना है? गन का मास है 20 किलोग्राम. और इनिशियली गन की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ गन इज 0 मीटर पर सेकेंड. इनिशियली ये सिचुएशन थी. जैसे ही फायर हुआ तब बुलेट का मास कुछ चेंज नहीं होने वाला है. बुलेट का मास तो 0.02 किलोग्राम ही होने वाला है, लेकिन बुलेट की स्पीड चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना रहेगा? 100 मीटर पर सेकेंड. और इस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है, तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो. ही प्रॉब्लम के अंदर जब भी कभी आपको इस डायरेक्शन में जाना हो तो आपको माइनस बोलना होगा. इस डायरेक्शन में आप प्लस बोल रहे हैं इसलिए. सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितने होगा? वो होगा 100 मीटर पर सेकेंड. गन का मास तो उतना ही रहेगा. कितना रहेगा गन का मास? 20 किलोग्राम. और आपको ये नहीं मालूम है कि गन की वेलोसिटी कौन सी रहेगी. ठीक है, तो ये फायर नहीं हुआ उसके पहले, ये फायर होने के बाद की सिचुएशन है. इसमें जो भी हुआ, गन फायर हो गई तो मोमेंटम कंजर्व होगा. मोमेंटम कंजर्व होगा तो आप ये बोलेंगे ना कि इनिशियल टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम. ठीक है, इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना है? तो बुलेट वाले का मोमेंटम प्लस गन वाले का मोमेंटम, मतलब कि एम बी वी बी इनिशियली प्लस एम जी वी जी इनिशियली इज इक्वल टू एम बी वी बी फाइनल प्लस एम जी वी जी फाइनल. यहाँ पे वी बी जो है उसको मैं इनिशियल बोल देता हूँ, वी बी और वी जी को इनिशियल बोलता हूँ. यहाँ पे ये दोनों फाइनल है. ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 0. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 0 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? 2. हेलो, 2.02 102 प्लस एम जी कितना है? वो है 20 किलोग्राम. और वी जी फाइनल नहीं मालूम है. वी जी को आप सब्जेक्ट करोगे तो आंसर आएगा -2/20. सो -1/10. सो -0.1 मीटर पर सेकेंड. सो फाइनल गन का वेलोसिटी देखो माइनस में आया. और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है? अगर बुलेट आगे की ओर गई तो गन पीछे की ओर आएगी. बुलेट की स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, गन की स्पीड है 0.1 मीटर पर सेकेंड. सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम. पहले आप इसको अपने सॉल्यूशन में किधर भी अच्छे से लिख लो, क्योंकि जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है उसकी वजह आप ये अच्छे से करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा.
तो ये वाला सॉल्यूशन आप किधर भी लिख लो। आंसर देखो, आप सॉल्यूशन जो आपको दिया है वो देखो। पहले उन लोगों ने तो डायरेक्ट यही कर दिया, आपको कैसे मालूम होगा कि ये आएगा? जो मैंने आपको बोला वो आप एक बार लिख लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन, a shell of mass 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilogram. The speed of the shell is given. What is the speed of the gun? ये आप अपने हिसाब से होमवर्क में सेल्फ स्टडी की, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना। सेम टू सेम सारी चीजें दी गई है, सिर्फ डेटा चेंज किया है, तो ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। इस तरह से मत करना जैसे मैंने आपको अभी वो समझाया कि आप इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम सब डिफाइन करके सॉल्व करना, तब ज्यादा इजी रहेगा। A body of mass 300 gram kept at a rest breaks into two parts due to internal force. One part of mass 200 gram is found to move at a speed of 12 meter per second towards the rest. Toward the rest नहीं आएगा, toward the, यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, यहाँ ईस्ट, चेक कर लेना, यहाँ पे ईस्ट है। What will be the velocity of the other part? दूसरे पार्ट की वेलोसिटी क्या होने वाली है? पहले तो आप सिचुएशन अच्छे से समझो। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 300 ग्राम। वो किस में है? इनिशियली वो रेस्ट पे है, v0 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कुछ इंटरनल फोर्स ऐसा लगता है कि वो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक पार्ट ये, तो सपोज दूसरा पार्ट ये आ गया, ये वाला पार्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये किधर गया मालूम नहीं है, लेकिन ये ईस्ट में जा रहा है। अगर आप ईस्ट वाले को पॉजिटिव बोलोगे तो उसके अपोजिट में जो आएगा उसको आपको नेगेटिव बोलना होगा। जो पहला सेगमेंट है, जो पहला पार्ट है, उसका मास 200 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी भी दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि मैं प्लस 12 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूं। किसकी? पहले वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। v2 आपको फाइंड करना है, लेकिन दूसरे का मास दिया नहीं है, लेकिन पहले 300 ग्राम का था, 200 ग्राम का एक पार्ट हुआ, तो दूसरा पार्ट कितने का हुआ होगा? 100 ग्राम का ही हुआ होगा ना। तो mass of 2 is given, velocity of 2 you want to find out, mass of 1 is given, velocity of 1 is given, initially mass and velocity is given. Whatever the process is internal process, so ultimately momentum will be conserved, and if momentum will be conserved, you can apply momentum conservation law. So according to momentum conservation law, you can say that total initial momentum is equal to total final momentum. इनिशियल मोमेंटम कौन सा है? टोटल। तो इनिशियली ये 300 ग्राम का था और उसका वेलोसिटी 0 था। फायर होने के बाद दो सेगमेंट हुए, एक सेगमेंट का मास है 200 ग्राम, उसका स्पीड है +12, दूसरे वाले का मास है 100 ग्राम और उसका स्पीड मालूम नहीं है, सपोज कि वो v2 है। तो आप यहां से v2 को सब्जेक्ट करो तो आंसर आएगा -200 इंटू 12, क्योंकि ये तो 0 है, ये यहां पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन 100। सो आंसर आएगा -24 मीटर पर सेकेंड। ये क्या बताता है कि अगर पहला ऑब्जेक्ट ईस्ट में गया, ईस्ट वाले को पॉजिटिव लेते थे, यहाँ पे माइनस आया, मतलब कि माइनस ये इंडिकेट करता है कि आपका दूसरा ऑब्जेक्ट डेफिनेटली वेस्ट डायरेक्शन में ही गया होगा। और कितनी स्पीड से गया होगा? 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया होगा। सो ये लॉ अप्लाई करने से आप वेलोसिटी या तो मास ऐसा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे किधर भी लिख लेना। सॉल्व प्रॉब्लम 175 में जो सॉल्यूशन दिया है वो इतना अच्छा
समझने के लिए आसान है, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्लासरूम में ये वाला सॉल्यूशन करवाया है, यही सॉल्यूशन इधर भी लिख लो। अगर एग्जाम में पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम में आगे जाके, तो आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन देना रहता है, लेकिन नीट एग्जाम में तो क्या है, आपको फाइनल आंसर तक ही पहुंचना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 24 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कौन सा होगा, वेस्ट। सो दैट्स हाउ यू कैन सोल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर लेक्चर, राइट। देखने में ही मजा आ जाएगा कि चलो ना, अभी सर ने टाइम तो बहुत लंबा ले लिया है, इस बार 10-15 मिनट ज्यादा ले लिया है, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं ब्रेक नहीं कर सकता बीच में, क्योंकि क्या है, सारे कंसेप्ट के साथ साथ ही एप्लीकेशन कराऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैं कभी कभार लेक्चर थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा ले लेता हूं, ताकि सेम थियरी के साथ सेम एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। Two toy cars A and B are moving towards each other on a horizontal surface. The car A has mass of 60 gram and moves towards the right with a speed of 60 centimeter per second. The car B has a mass of 100 gram and moves towards the left with a speed of 20 centimeter per second. Two cars collide and get stuck to each other. With what velocity will they move after the collision? सी सिचुएशन आप अपने हिसाब से समझो। ए वाली कार का मास कितना है, मास ऑफ ए इज गिवन, कितना है, 60 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ ए इज व्हाट, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बी वाले का मास कितना है, 100 ग्राम। बी वाले की इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, अगर ए वाले की वेलोसिटी को आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो बी वाला तो यहां से आ रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है उसको आपको लेना होगा -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये डायरेक्शन को आप प्लस बोलते हैं तो ये डायरेक्शन को आपको माइनस बोलना होगा। इनिशियली ये भी आ रहा है, इनिशियली ये भी आ रहा है, टकराने के बाद दोनों कार एक साथ जुड़ जाती है, तो यहां पे क्या होगा, ये वाली कार और ये वाली कार दोनों एक साथ कंबाइन हो गए, तो अभी टोटल मास क्या होगा, फाइनल मास वो ए वाले का और बी वाले का जो भी मास रहेगा वो मास होगा, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सपोज कि v होगी, वो v कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर द कोलिजन। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको करना होगा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम is equal to final total momentum of system। मोमेंटम कंजर्वेशन से हम यहां तक पहुंच सकते हैं। इनिशियल टोटल मोमेंटम मीन्स व्हाट, इनिशियल मोमेंटम किसका, कार ए का, प्लस इनिशियल टोटल मोमेंटम किसका, कार बी का, इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम। फाइनल टोटल मोमेंटम जो भी होगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ए वाली कार का मास, ए वाली कार की स्पीड यूए, एम ए यूए, यूए ही बोला है ना हमको, हाँ, प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू, फाइनली क्या होगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी होगा कि नहीं। ये वाले का मास है 60 ग्राम और उसकी स्पीड दे गई है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है 60 ग्राम। एम बी वाली का मास है 100 ग्राम और उसकी स्पीड कितनी है, -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो -20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी दोनों का मास ऐड करो, मतलब कि 60 ग्राम प्लस 100 ग्राम,
और वो वेलोसिटी कहाँ है वो मालूम नहीं है। वो दोनों टकराने के बाद लेफ्ट की ओर जाएगा कि राइट की ओर जाएगा वो आपको नहीं मालूम है। ठीक है, कैलकुलेशन करता है, v की जो साइन आएगी उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। ये हो जाएगा 3600 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस ये हो जाएगा -2000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 160 ग्राम और साथ में आएगी वेलोसिटी जो होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा तो ठीक है, ये नहीं मालूम है किसका यूनिट आएगा इसका, ये तो आप यहाँ से ये देख लो 3600 में से 2000 जाएगा तो 600 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड बाकी रहेगा। उसके डिवाइड में वो 160 ग्राम आएगा तो ये आपका v होना है। तो 160 टेंस आर 1600 ग्राम ग्राम विल बी कैंसल। सो आपका आंसर क्या आया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और आपका आंसर पॉजिटिव आया। मतलब कि एक कार यहां से आई एक कार यहां से आई, टकराने के बाद वो यहां पे नहीं गई, टकराने के बाद वो यहां पे गई और कौन सी स्पीड से गई 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ये वाला सॉल्यूशन भी आप लिख लो। इसका सॉल्यूशन मत लिखना, पहले ऐसे फिगर के ऊपर ये सारा डेटा कैलकुलेट करना और उसके बाद ये सॉल्यूशन आप लिख लेना। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन दिया है वो समझने के लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, किया वही है जो हमने किया है लेकिन एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देते हैं ना तो समझने के लिए हार्ड हो जाता है। ये आपका होमवर्क है, गलती से होमवर्क थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाई थियरी टॉपिक कौन सा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं। सॉल्व प्रॉब्लम 169, 173, 175, 176 और CTP 153 to 168 मतलब सारे करने हैं। फिर 178, 181, 183, 177 और 192। ठीक है, तो ये होमवर्क आप अपने हिसाब से लिख लेना। सारे के सारे जो थियरी पोर्शन है वो अच्छे से पहले याद करना, फिर सारे प्रॉब्लम अपने हिसाब से खुद ब खुद ट्राई करना, क्योंकि अगर एक बार आप ये कर लोगे तब आपको 11th 12th में ज़्यादा फायदा होगा। तो 10-15 मिनट ज़्यादा ले लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरी मजबूरी थी क्योंकि सारे थियरी के साथ सारे एप्लीकेशन आज ही ले लेता तो आपको ज़्यादा समझ में आ सकता, इसलिए मैंने 10-15 मिनट ज़्यादा करके ये सारे क्वेश्चन आज के आज ही बताए। थैंक यू, वी स्टॉप हियर। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।